آج انسان کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، آج انسان ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا ہے صرف مال کی محبت کی بنیاد پر، آج انسان بھائی بھائی میں لڑتا جھگڑتا ہے صرف مال کی محبت کی بنیاد پر، آج انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے صرف مال کی محبت کی بنیاد پر، آج انسان اپنے ماں اور باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر کرتا ہے صرف مال کی محبت کی بنیاد پر اور بیوی کی محبت کی بنیاد پر۔ اس لیے مسلمانوں، آپ اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکالیں، اور مال کی محبت آپ کے دل سے کیسے نکلے گا؟ تو سنو، آپ کے دل سے مال کی محبت کیسے نکلے گا؟ جب آپ کثرت سے صدقہ دیں گے، جب آپ کثرت سے مدرسے میں مسجد میں پیسے خرچ کریں گے، جب اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے آپ زکوٰۃ نکالیں، اگر آپ پر حج فرض ہے آپ حج کریں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، یعنی وہ بیماری جو لا علاج ہے، جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، جس بیماری کو ڈاکٹر کہتے کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں، اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اس بیماری کا علاج بھی اللہ نے صدقہ کے اندر رکھا ہے۔ انسان اگر صدقہ دے تو صدقہ کی برکت سے اللہ بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے، اور صدقہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آج انسانوں کے دلوں میں مال کی محبت اتنی پیدا ہو چکی ہے، آج انسان مال کی محبت میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ مال خرچ کرنا تو دور کی بات، آج انسان رشوت لے رہا ہے، آج انسان سود کھا رہا ہے، آج انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے، آج مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ حرام رزق کھا رہے ہیں۔ اے مسلمان، یاد رکھو، جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو اور جس کے بدن پر حرام لباس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ چیک کریں، کہیں آپ حرام رزق تو نہیں کھاتے، کہیں آپ اپنے جسم پر بدن پر حرام لباس تو نہیں پہنتے ہیں، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو، جس کے بدن پر حرام لباس ہو، انسان اگر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ انسان رو رو کر دعا کرتے کرتے اپنی جان بھی دے دے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس لیے کہ اس کے بدن پر حرام لباس ہے، اور جس کے پیٹ میں، جس کے بدن پر حرام لباس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آج جو رشوت لیا جا رہا ہے، آج جو ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، آج جو ایک دوسرے کی جانیں جا رہی ہے، صرف مال کی محبت کی بنیاد پر، آج انسانوں کے دل میں مال کی محبت اتنی پیدا ہو چکی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے تین دوست ہیں، ایک اس کی اولاد، اور ایک اس کی مال، اور ایک اس کے اعمال۔ لیکن جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو سب سے پہلے انسان کا اگر کوئی چیز ساتھ چھوڑتا ہے تو وہ مال ہے، جو سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، دوپہر کی چچراتی ہوئی دھوپ میں مال سے محبت کرنے والوں، دوپہر کی چچراتی ہوئی دھوپ میں جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والوں، جمعہ کی نماز تک بھی نہ پڑھنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کو بھول جانے والوں، میں محنت کرنے سے منع نہیں کرتا، کرو، خوب محنت کرو، لیکن انسان مال کی محبت میں اتنا ڈوب گیا ہے، انسانوں کے دلوں میں مال کی محبت اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ اللہ اکبر، انسان دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مال سے محبت کرنے والا انسان، سردی کی راتوں میں ٹھٹھر ٹھٹھر کر مال سے محبت کرنے والا انسان مال کو کتنا جوڑ کر رکھتا ہے، اسی مال کو کبھی اپنے ماں باپ سے چھپایا، اسی مال کو
कभी अपने बच्चों से छुपाया, उसी माल को कभी अपने भाई बहनों से छुपाया, और उसी माल के लिए कभी झूठ बोला, उसी माल के लिए कभी चोरी किया, उसी माल के लिए कभी रिश्वत लिया, उसी माल के लिए कभी जुआ खेला, उसी माल के लिए कभी मिलावट का काम किया। इंसान माल के लिए क्या नहीं करता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जब इंसान मर जाएगा तो सबसे पहले इंसान का अगर कोई चीज साथ छोड़ता है तो वो माल है जो सबसे पहले इंसान का साथ छोड़ देता है। मुसलमानों, जो सबसे पहले हमारा साथ छोड़ने वाला है उसके लिए इंसान क्या नहीं करता है। माल के लिए इंसान क्या नहीं करता है। झूठ बोल बोल कर माल कमाते हैं, नाप तोल में कमियां करते हैं, जुआ खेलते हैं, सूद खाते हैं। बताइए मुसलमानों, जो सब छोड़ के जाना है उसके लिए इंसान क्या नहीं करता है। लेकिन सुनो, मेरे आका फरमाते हैं पहले तो माल साथ छोड़ता है, माल तो घर ही से साथ छोड़ देता है, बल्कि घर तो दूर की बात, इधर इंसान की आंखें बंद हुई, रूह का रिश्ता जिस्म से टूटा, इंसान का हाल ये हुआ कि उसके माल उसके वारिसों का हो गया। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं उसकी औलाद, उसके अहलो अयाल, उसके रिश्तेदार उसको कब्र तक छोड़कर वापस हो जाती है, और साथ में जाने वाली कौन सी चीज है तो वो नामे आमाल है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, लेकिन इंसान ने माल से ज्यादा मोहब्बत की। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, माल ने तो घर ही से साथ छोड़ दिया, उसके बाद इंसान ने अपनी औलाद से मोहब्बत की, दोस्त यार से मोहब्बत की, लेकिन दोस्त यार ने, औलाद ने कब्र से ही साथ छोड़ दिया। और जो अमाल हमारे कब्र तक काम आने वाले थे, बल्कि सिर्फ कब्र ही नहीं कयामत तक के लिए काम आने वाले थे, जो अमाल हमेशा के लिए हमारी साथी बनने वाले थे, हमने उन अमाल की तरफ कभी गौर नहीं किया, हमने उन अमाल की तरफ कभी तवज्जो न दी, हमने उन अमाल से कभी दिल न लगाया। मेरे आका के प्यारे दीवानों, रात की तारीकियों के अंदर गुनाह तो किए लेकिन कभी नेकी नहीं की। रात की तारीकियों के अंदर गुनाह तो किए लेकिन कभी अल्लाह को राजी करने की कोशिश न की। रात की तारीकियों के अंदर लड़कियों के साथ गलत ताल्लुक तो कायम किए लेकिन कभी आका को राजी करने की कोशिश न की। इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है, इंसान इतना खुद फरामोश हो गया है, वो ये भी भूल गया है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा है। अब जानते अल्लाह ने इस दुनिया में हमें किस लिए भेजा है। सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इसका मतलब होता है, अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन्न और इंस को, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो मुसलमानों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया है, तो फिर हम इबादत क्यों नहीं करते? हम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते हैं? बताओ मुसलमानों, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम जुमा की नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? याद रखो मुसलमानों, जब मरोगे ना तो उलमा की बात आपको कब्र में याद आएगी कि हाँ, उलमा ठीक कहते थे, उलमा सही कहते थे कि नमाज पढ़ो, लेकिन हमने उनके बात पर अमल नहीं किया। मेरे आका के प्यारे दीवानों, इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है, इतना खुद फरामोश हो गया है कि वो अपने रब को भूल गया है। इंसान रिस्क का ख्याल तो किया लेकिन रिस्क देने वाले खुदा को भूल गया। मेरे आका के प्यारे दीवाने सुन लो, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान की तबीयत कभी माल से भर नहीं सकती। मेरे आका फरमाते हैं अगर इंसान के पास सोने का पहाड़ हो, इंसान के पास अगर सोने का पहाड़ हो, मेरे आका फरमाते हैं एक पहाड़ हो तो दूसरे की तमन्ना करेगा, दूसरा हो तो तीसरे की तमन्ना करेगा। हत्ता के इंसान का हाल ये है कि इंसान के पेट को, उस इंसान के पेट को कब्र के मिट्टी के अलावा कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकती। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया है। याद रखो मुसलमानों, माल से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह कहता है कि तुम हिलाक हो गए, अल्लाह को मुतकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि हिलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्र के दहाने पहुँच गए। मुसलमानों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत इंसान को कभी भी आ सकता
जाता है। आप नहीं देखते हैं इंसान चलते फिरते मर जाता है। आप नहीं देखते हैं इंसान गया एक्सीडेंट हो गया जगह पे मर गया। आप नहीं देखते हैं इंसान रात को सोया सुबह को पता चला उसका इंतकाल हो गया है। आप नहीं देखते मुसलमानों, इसलिए मौत का फरिश्ता जिस्म का ताल्लुक हमारे रूह से तोड़ दे, इससे पहले आखिरत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो, वरना याद रखो जब मरोगे तो मरोगे तो कब्र में पछताने के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए अच्छे अमल कर लो इससे पहले कि जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाए। आखिरत की तैयारी कर लो। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, फिरौन कितना बड़ा मालदार था, लेकिन आज तक फिरौन को कफन भी नसीब नहीं हुआ, आज तक फिरौन को कब्र भी नसीब नहीं हुई। एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, एक आप इंटरनेट पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। फिरौन की लाश अभी भी मौजूद है। मेरे ख्याल से फिरौन को मरे हुए लगभग 4,500 या 5,000 साल का जमाना गुजर गया होगा, लेकिन अभी भी फिरौन की लाश मौजूद है, एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। मुसलमानों, क्या फिरौन की लाश हमारे लिए दावत इबरत नहीं है? जिसने इतनी दौलत इकट्ठा की, जिसने इतनी माल इकट्ठा की, आज तक उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ, आज तक उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई। मुसलमानों, आज तो गरीब से गरीब मुसलमानों को भी कब्र नसीब हो जाता है, आज तो गरीब से गरीब मुसलमानों को भी कफन नसीब हो जाता है, लेकिन फिरौन इतना बड़ा मालदार था उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ, उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई। मेरे आका के प्यारे दीवानों, क्या फिरौन की जिंदगी हमारे लिए दावत फिक्र नहीं है? लेकिन इंसान दौलत के नशे में इतना चूर हो गया है कि इंसान ये भी भूल गया है कि एक दिन मौत आना है, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा। मुसलमानों, जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाए इससे पहले मौत का फरिश्ता आकर हमारे जिस्म से हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारे रूह से तोड़ दे, इससे पहले मौत की तैयारी कर लो। हज़रात, मेरे आका फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, हजरत इब्ने मसूद से रिवायत है, फरमाते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन उस वक्त तक इब्ने आदम के कदम इधर उधर नहीं होंगे जब तक उसे 5 सवाल न कर दिया जाए। वो 5 सवाल क्या है? पहला सवाल पूछा जाएगा, तूने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी? दूसरा सवाल पूछा जाएगा, तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी? तीसरा सवाल पूछा जाएगा, तूने माल कहाँ से कमाया? चौथा सवाल पूछा जाएगा, तूने माल को कहाँ खर्च किया? और 5वां सवाल पूछा जाएगा, तूने अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया? हजरात, तूने अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया? 1 से 2 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ, इसलिए कि उलमा की तादाद ज्यादा है, आपको हर उलमा की बयान सुनना है। हजरात, तीसरा नंबर पर जो सवाल पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? तूने माल कहाँ से कमाया? बताओ मुसलमानों, माल कहाँ से कमाते हो? हराम तरीके से कमाते हो या फिर हलाल तरीके से कमाते हो? कहीं सूद लेकर के तो माल नहीं कमाते हो, कहीं जुआ खेल करके तो माल नहीं कमाते हो, कहीं झूठ का काम झूठ बोल करके तो माल नहीं कमाते हो, कहीं मिलावट का काम करके तो माल नहीं कमाते हो। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जब हम माँ के पेट में थे तभी अल्लाह लिख दिया कि किसको कितना माल मिलेगा। मुसलमानों, आप जितना भी मेहनत कर ले माल मिलेगा आपको उतना है जितना अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। तकदीर से ज्यादा न किसी को मिला है न मिल सकता है। आप बेईमानी करके कमाए, आप ईमानदारी से कमाए, फिर भी आपको उतना ही माल मिलेगा जितना कि अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। मुसलमानों, जब उतना ही माल मिलना है तो फिर हम हलाल तरीके से क्यों न कमाए? हम हराम तरीके से कमाकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन हम क्यों बनाए? इसलिए मुसलमानों, याद रखो, आप हराम तरीके से कमाएंगे तो भी उतना ही माल मिलेगा जितना माल अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। आप ईमानदारी से कमाएंगे, हलाल तरीके से माल कमाएंगे तो भी उतना ही माल मिलेगा जितना कि अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। इसलिए मुसलमानों, आप हलाल तरीके से माल कमाए। उलमा की तादाद ज्यादा है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मुझसे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो और सामान्य को सुनने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो तो मैं सारे लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ और ये भी
توبہ کرتا ہے یا توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرما. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سارے لوگ بلند آواز سے پڑھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اس تقریر پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علی جناب رفیق صاحب نے، شفیق صاحب نے، رئیس صاحب نے جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اس مقصد کو قبول فرمائے اور آپ کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.